Hello guys, welcome to my channel. I hope you have seen my previous video in which I have discussed about the male reproductive part of a flowering plant, and in this video I would be discussing about the female reproductive parts of the flowering plant. I would be discussing about the process of microsporogenesis. So please be patient and please pay full attention on this topic as it is a very confusing and very important topic of this chapter, and it is a very major chapter also. So please pay your complete attention to the diagrams and where I am telling about which division. Please pay your attention to it. So let's begin. So this is a flower that we have also seen in our previous video, and we have discussed about the male reproductive part which is known as stamen. Today we will be talking about the female reproductive part which is the pistil, and it is also known as gynoecium, and it consists of stigma, style and ovary. So the female reproductive organ is known as gynoecium, and it can have a single pistil, then the situation will be monocarpellary, and if it is having more than one pistil then the situation will be multicarpellary. Alright, and if there are more than one pistil present, then the pistil can be either fused, then the situation will be syncarpous, and the pistil can also be free, then the situation will be apocarpous. Now the pistil is having three parts: stigma, style and ovary. Here you can see that stigma is the uppermost part, then it is extending into the style. This is the style, and it is having a bulged part which is known as the ovary. Ovary is having an ovarian cavity inside it. Ovarian cavity is having a placenta, and the placenta is having ovules which are known as megasporangia. So I would be telling the brief of everything that is being written on these slides. You can please take the screenshots, pause and take the screenshots so you can read them later. Now the megasporangium is our major thing which we have to study well. Okay, so the megasporangium is present inside the placenta, and the placenta is inside the ovarian cavity of the ovary. Placenta is attached to the ovule with the help of helium. Okay, so the placenta is being attached with the help of helium, and there is a funicle between the helium and the ovule. Helium और ओव्यूल के बीच में एक फ्यूनिकल एरिया प्रेजेंट है. उसके बाद जो ओव्यूल है, इट इज बीइंग कवर्ड बाय इंटेग्यूमेंट्स. दीज आर द लेयर्स व्हिच आर नोन एज इंटेग्यूमेंट्स, एंड these इंटेग्यूमेंट्स आर नॉट present at area which is known as the micropylar end or the micropyle. So there the integuments are not present. Why they are not present there? Because when the pollen grain will be germinating and it will be extending its pollen tube, then that pollen tube will come over here in the micropylar end, and it will deposit the male gametes that it will be bringing over here at the micropylar end. Okay, now the ovule is protected with the help of the integuments. So integuments are basically doing the function of protection. Now opposite to the micropylar end is the chalazial pole. It is present at the basal area of the ovule, and it is known as the chalaza pole or chalazial end. Integuments enclose a mass of cells which is known as nucellus. इंटेग्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है? मास ऑफ सेल होता है जिसको न्यूसिलस बोलते हैं. ये एक न्यूसिलस है. ओके, न्यूसिलस के पास क्या है? अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल है. किसके लिए? ये जो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है उसके लिए उसके पास अबंडेंट फूड मटेरियल प्रेजेंट है, क्योंकि आगे का जो भी गैमीट्स फॉर्म होंगे वो इस एम्ब्रियो सैक के थ्रू ही फॉर्म होंगे. So you can just take the screenshot and read what I have written on the slides later on. Now just listen to me very carefully. Now an ovule has a single embryo sac. न्यूक्लियस के अंदर ओव्यूल है, और उस ओव्यूल के अंदर सिर्फ एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है जो कि आगे मियोसिस अंडरगो करेगा और मेगास्पोर में फीमेल गैमीट में डेवलप करेगा. Formation of megaspore from megaspore mother cell is known as megasporogenesis. हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है. वहाँ पे माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होता है जो कि पॉलन ग्रेन्स में डेवलप करता है. यहाँ पे मेगास्पोर प्रेजेंट होता है जो कि ओव्यूल में या फिर मेगास्पोर्स में डेवलप करेगा. दोनों मेल और फीमेल गैमीट बनाएंगे. ओके,
और एक चीज आप ध्यान रखेंगे हमेशा, हमारे नेचर ने कुछ ऐसी संरचना की है जिसकी वजह से जो मेल गैमीट है वो हमेशा माइक्रो से डिनोट होगा, वो हमेशा छोटा होता है, और जो फीमेल गैमीट होती है वो हमेशा बड़ी होती है और मेगा से डिनोट होती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि फीमेल गैमीट आगे जाइगोट को ग्रो करने में हेल्प करेगी, तो उसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होना चाहिए जो कि जाइगोट को सस्टेन कर सके। इसलिए जो हमेशा फीमेल गैमीट होगा वो बड़ा होगा और उसको मेगा बोला जाएगा, इसलिए यहाँ पे फीमेल गैमीट को मेगास्पोर बोला गया है। अब जो मेगास्पोर्स आर फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल को हमने यहाँ पे एमएमसी से डिनोट किया है, इज डिफरेंशिएटेड इन द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द न्यूक्लियस। अब एक बात ध्यान रखनी है, जो भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो भी डिवीजन हो रही है वो कहाँ पर हो रही है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे डिवीजन अंडरगो कर रहा है, तो इट इज टेकिंग प्लेस एट द माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वहीं पे मेल गैमीट्स आ रहे हैं और उसी जगह पे सारा का सारा प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है। मेगास्पोर मदर सेल रिच इन रिजर्व फूड मटेरियल होती है, उसका एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मियोसिस अंडरगो करेगी और एक मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म करेगी, 4 मेगास्पोर की सेल फॉर्म करेगी। ठीक है, अब ये सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको पॉज कर देती हूँ। ओके, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं जो भी आपको बताऊंगी वो डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है क्योंकि जो मेगास्पोर मदर सेल होगी, यहाँ पे मेगास्पोर टेट्राड जो बनेगा उसमें 3 सेल्स जो होंगी वो डिजेनरेट हो जाएंगी और सिर्फ एक मेगास्पोर से आगे जाके एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो इसकी वजह से इस टाइप की डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाता है। ठीक है, और जब ये एम्ब्रियो सैक क्या करेगा, फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल्स में सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाएगी। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है वो किस तरह से बनाएगी एम्ब्रियो सैक, तो इसे देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अभी तक जो हुआ है, अभी तक आप डायग्राम पे आइए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। तो ये आपकी फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बहुत सारा अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट है। ये क्या करेगी, अब ये आपकी प्रोमिनेंट मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, मेगास्पोर डायट में डिवाइड करेगी, पर उसमें भी एक ही सेल काम की रहेगी जिसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहेगा। उसके बाद इट विल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस अंडरगो करने के बाद उसका मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन होगी, और यहाँ तक जो सिचुएशन है वो डिप्लॉइड सिचुएशन है। यहाँ पे सिचुएशन जो आ गई है वो क्या आ गई है, हैप्लॉइड सिचुएशन आ गई है यहाँ से। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, 3 सेल्स डिजनरेट हो गई, सिर्फ एक सेल फंक्शन कर रही है ये वाली, तो इसलिए यहाँ पे एक ही सेल फंक्शन कर रही है, इसलिए इस टाइप के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब इस सेल को आप यहाँ पे आ जाइए, मैं ऐसे ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। ये एक सेल जो है हमारी, दिस इज द सेल, दिस विल कम हियर एंड इट विल अंडरगो माइटोसिस। ये माइटोसिस अंडरगो करना स्टार्ट कर देगी। माइटोसिस अंडरगो करेगी, 2 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल स्टेज आएगी और 8 सेल स्टेज आएगी। जब तक ये 8 सेल स्टेज रीच नहीं कर जाएगी तब तक इसकी सेल्स अपने अराउंड एक अच्छा सेल वॉल डेवलप नहीं करेंगी। जब 8 सेल की स्टेज बन गई है उसके बाद ये अपने आप के अराउंड सेल वॉल डिवाइड करेंगी और अपने आप को प्रॉपरली अरेंज करेंगी एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो ये आपने चैलेजल एंड देखा था, ये आपने माइक्रोपाइलर एंड देखा था पहले ओव्यूल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 सेल 8 सेल्स किस तरह अरेंज करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये चैलेजल एंड उल्टा दे रखा है और यहाँ ऊपर माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे उल्टा है। तो चैलेजल एंड के पास क्या होंगे, एंटीपोडल्स होंगे, 3 सेल्स होंगी एंटीपोडल्स की, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होंगे जिसको सेंट्रल सेल भी बोल सकते हैं, या पोलर न्यूक्लियाई 2 सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई और नीचे 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होंगे माइक्रोपाइलर एंड पे और एक एग सेल प्रेजेंट होगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे 3 सेल हो गई माइक्रोपाइलर एंड पे, 2 सेल बीच में हो गई और 3 सेल चैलेजल एंड पर प्रेजेंट हो गई। दीज आर द टोटल 8 सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट इनसाइड द ओव्यूल। ऑलराइट, इज इट क्लियर अबाउट इट? यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। सिनर्जिड्स के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो कि आगे पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाते हैं जिससे वो मेल गैमीट्स एग सेल तक पहुंचा सके। ऑलराइट,
तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्पोर का आपने देख लिया, ओव्यूल, माइक्रोस्पोर मतलब ओव्यूल जो था, माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि ओव्यूल था, उससे आपके माइक्रोस्पोर बने। फीमेल गैमीट्स किस तरह से बने, ठीक है, और किस तरह से वो सेल्स अरेंज्ड हुई, आपने ये सब कुछ देख लिया। अब आगे वाले वीडियोस में आई वुड बी एक्सप्लेनिंग इन सब सेल्स का क्या रोल है, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होगा, किस तरह एग सेल क्या डेवलप करेगी, पोलर न्यूक्लियर का क्या फ्यूचर होगा। दिस विल बी डिस्कस्ड इन द फ्यूचर वीडियो। If you have liked this video, then please subscribe to my channel, share this video with your friends, and if you have any doubt regarding any video on my channel, then please mention your doubt in the comments, or you can also contact me at biology@gmail.com. And I hope you like this video. If you have any query, then please feel free to contact me. I'll be very happy to clear your doubts. Please subscribe, like this video, and press the bell icon and share it with your friends. Thank you very much.